Hello students, how are you? Today we are going to start our computer class for Microsoft Word 2010. Today we will see using styles and object in Microsoft Word 2010. Before starting the topic, there is a message for you. Stay at home, stay safe and wash your hands. Working with the shapes. The shape is a drawing feature that helps you to draw various shapes like star, banners, callouts and connectors. Students, you can see in this diagram, or first is written shapes, then recently used shape. In recently used shape, it is shown the shapes that we use recently. Okay, then after shapes are available for the lines, rectangular shapes, basic shapes, block arrows, equation shapes, flowchart, stars and banners and call out shapes. How we can use them in our document? Let's see. Students, वर्किंग विथ शेप्स में आप बहुत सारे स्टाइल्स के स्टार्स, बैनर, कॉल आउट्स, कनेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं. ये फिगर में आपको वो सभी ऑप्शंस शो किए हुए हैं जिन्हें आप शेप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम इन्हें हमारे डॉक्यूमेंट में कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं. दिस इज़ अवर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड document. You have to go into the insert button, then after it is written here shapes, just click on it and select the shape that you want to use in your document. Students, आपको shapes select करने के लिए सबसे पहले आपको insert button में जाना है. वहाँ पर shapes है. shapes में से आप जो इमेज चाहें वहाँ से आप select कर सकते हैं. ये देखिए इस तरीके से शेप आपका आ जाएगा. शेप का आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आपके पास में ऑप्शंस हैं. ब्लैंक रखना है, ब्लैंक आ जाएगा. जो आउटलाइन रखनी है वो आउटलाइन आ जाएगी. तो इस तरीके से आप शेप को चेंज कर सकते हैं. उसका कलर आपको चेंज करना है, यहाँ से आप कलर उसमें चेंज कर सकते हैं. आउटलाइन आपको अभी ऑरेंज कलर की है, आप चाहें तो किसी और कलर की कलर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा. तो इस तरीके से आप उसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स और आपको शेप्स ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से शेप्स वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम बैक टू द स्लाइड्स. प्लेसिंग टेक्स्ट इन शेप. यू कैन आल्सो इंसर्ट टेक्स्ट इन द शेप्स. आपने जो भी शेप्स ड्रॉ की हैं आप उनमें टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं. The shapes that you have drawn, you can insert text in that also. You can see in the figure, practice makes man perfect. ये आपका एक शेप है जिसमें आपने लिखा है practice makes man perfect. That means आप अपनी शेप में कुछ भी राइट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करा सकते हैं. कैसे करा सकते हैं देखते हैं. Let's see how we can insert the text in our shapes. For example, I am drawing here one circle. Okay, if I want to change the color, I can change the color of it. Okay, हमने एक शेप ड्रॉ किया, कलर चेंज कर लिया. अब हमें टेक्स्ट लिखना है तो आपको इस शेप पे राइट क्लिक करना है. फॉर राइटिंग द टेक्स्ट, डू द सेलेक्ट द शेप एंड डू राइट क्लिक एंड देन use this option add text. Then after, cursor will start blinking and you can write here anything. You can see here, now I can write in that. Okay, so friends, in this way you can enter the text in your shapes. Now come back to the slides. Using drawing tool. All the drawing tool features are present in the shape drop down menu in the insert tab. आपके जितने भी ड्राइंग फीचर्स होते हैं वो आपको शेप्स
का जो आपको ऑप्शन वहाँ मिला था उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में होते हैं, और ये शेप ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा. In the insert tab you will got the shape option. In the shape option you will get the lot of features of drawing. By the help of these features you can draw the hut and any drawing if you want to draw. Let's see how we can do. You can go into the insert tab. First insert tab में जाएंगे, select the shapes. कोई भी शेप आप जैसे चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर शेप सेलेक्ट कर लीजिए. ओके, फॉर एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग द लाइन हेयर. मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया. ओके ओके, देन आफ्टर मुझे ऐसी ही लाइन एक और चाहिए, तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ कंट्रोल इसको कॉपी कर सकती हूँ इसी लाइन को. ये लाइन मेरे पास एक और आ गई है. इफ़ आई वॉन्ट टू यूज़ द लाइन वन मोर आई कैन यूज़ द कॉपी ऑप्शन, अदरवाइज अगेन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हेयर. आपको लाइन कॉपी चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से फिर से ले सकते हैं. इस तरीके से आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं. आपको एक और लाइन चाहिए, आप फिर से उसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं. ओके, ऐसे ही आप यहाँ पर भी उसे प्लेस कर सकते हैं. ओके, और लाइंस हम एक वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए हट हेयर. हम एक हट बनाने जा रहे हैं, तो हट बनाने के लिए हमें ढेर सारी लाइंस की रिक्वायरमेंट रहेगी. वी आर गोइंग टू ड्रॉ हेयर हट, दैट्स वाई वी नीड लॉट ऑफ लाइंस. सो वी कैन टेक दीज लाइंस फ्रॉम द शेप ऑप्शन एंड start drawing. We can draw the hut by the help of line only. Okay, so students, one by one you have to take the lines and you have to try to draw the hut. आप देख सकते हैं कितनी इजीली मैंने हट ड्रॉ कर दिया है आपका. अब हट में आप डोर लगा सकते हैं, तो डोर लगाने के लिए यू कैन यूज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगल. आप रेक्टेंगल की शेप डोर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप कलर चेंज कर दीजिए. ये आपका डोर हो गया. विंडोज़ इफ़ यू वांट टू क्रिएट देन यू कैन यूज़ दिस शेप. ओके, इसका कलर आपको चेंज करना है. ये कलर चेंज हो गया. ऐसे ही आपको एक और बनाना है, तो आप एक और भी बना सकते हैं. आप उसको प्लेसमेंट उसको दे सकते हैं. तो इस तरीके से आपका ये बन गया. आप चाहें तो यहाँ पर और भी शेप्स यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू यूज़ मोर शेप्स देन यू कैन यूज़ इट अगेन. फॉर एग्जांपल वी वांट टू यूज़ दिस शेप हियर, तो you can use that. Okay, if you want to change the color you can change. Okay, so students, this is the way in which you can use the shapes to draw your drawing. Okay, now come back to the slide. Inserting clip art and pictures. You can insert a picture or clip art in your document to make it appealing. आप अपने ड्राइंग में क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डॉक्यूमेंट की लुकिंग बहुत चेंज हो जाएगी, ब्यूटीफाई हो जाएगी. You can change the looking of your document by inserting the clip art and pictures. Clip art is a gallery of pre-designed pictures that can be inserted directly in a document. Clip art आपकी एक गैलरी होती है जिसमें पहले से ही पिक्चर्स बने बनाए रेडी रहते हैं और आप उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. By the help of a clip art, you can use the pre-designed pictures in your document to make it more beautify. How we can use that? Let's see. You have the option here for the clip art. You have to write down the clip art and what picture you want. Just write and search. Okay.
आप क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट ऑप्शन में उस पिक्चर का यहाँ नाम लिख दीजिए, और फिर उसे सर्च कीजिए। तो कंप्यूटर से, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, तो उससे रिलेटेड सारी पिक्चर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी जो भी आपके सिस्टम में होंगी। सेम ऐसे ही आप कोई पिक्चर क्लिप आर्ट की जगह पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट करके आपके पास जहाँ पिक्चर सेव होंगी वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, और इंसर्ट क्लिक करने के बाद आपकी वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो जाएगी। For inserting the picture, you can use the option insert picture, and if you want to select any picture, then click OK, insert OK. Then that picture that you have selected will come in front of you in the document. How we can do in the Microsoft Word? Let's see. Okay, clip art. You have to go into the insert button and see it is written here clip art. आपको क्लिप आर्ट के लिए इंसर्ट बटन में जाना है और क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साइड में आपके पास में एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप जो चाहें लिख सकते हैं। कंप्यूटर जैसे लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखने के बाद आप यहाँ पे गो कर दीजिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जितने भी आपके पास में पिक्चर्स होंगे वो सभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यू कैन सी जितने भी ऑप्शंस हैं सभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। जो आप यूज़ करना चाहते हैं वही आपका यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इफ यू वांट टू मूव इट एनीवेयर यू कैन मूव दैट। ओके, आपको जहाँ भी चाहिए आप कर्सर प्लेस कर दीजिए और वहाँ पर आपकी इमेज प्लेस हो जाएगी। आप कोई और भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपकी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वे to use the clip art. If you want to search another you can write here anything. टीचर आपने लिखा तो टीचर आपका इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट ऑप्शन अवर पिक्चर्स। हाउ वी कैन इंसर्ट पिक्चर। you have to go into the insert button then select picture. क्लिप आर्ट आपने करना देखा कैसे हम कर सकते हैं। अब देखते हैं पिक्चर हम हमारे डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट बटन में आपको पिक्चर पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो गए, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और आपको जो पिक्चर अच्छी लग रही है उसे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए। तो वो पिक्चर आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यू कैन सी कि वो जो पिक्चर आपने वहाँ से सेलेक्ट की थी वो आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आप चाहें। ये छोटे छोटे से जो एरोज आपके स्क्वायर्स फॉर्म में आपको विजिबल हैं उनकी हेल्प से आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग दिस थिंग अगेन। You have to go into the insert button, then select the pictures, then after which picture you want to use just select and click insert. The selected picture will come in your document. You can set that picture according to you where you want to place that picture. Okay students, now I am stopping here. Next week I will show the next topic. तब तक स्टूडेंट्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू।